ओके। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे कि उनको हम वो वैल्यूज़ को हम कैसा यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर सिलेक्टिंग डेटा टू परफॉर्म सम एक्शंस ऑन इट। बट उससे पहले लेट्स थिंक, हमने हमारे पिछले वीडियो में इतने सारे चेंजेस किए थे हमारे टेबल को, लाइक we changed the column name, we changed the column type, we added columns, so on and so forth. तो हम कैसे देख सकते हैं हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को कि कौन सा कॉलम है, उसका टाइप क्या है? तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कॉल्ड DESC और डिस्क्राइब। Both of these are correct. You can either use this short form or this full form when you're using the function. So you'll write DESC table name semicolon or describe table name semicolon. Now remember, this is the same as writing it in all small. These both are correct because SQL is case insensitive. It does not care whether you are writing in lowercase or uppercase. ठीक है. So now let's start the main topic for today, and let's start it by talking about conditions. So remember last video I had said that certain conditions are there when you are selecting, which you can use and you can see what exactly you want the condition to be. So today we are going to talk about that. The first condition, the simplest one, let's talk about between a particular range. So the first condition we are going to look at is between and not between. Handwriting is degrading every video. Okay. ठीक है. So the way we'll do this is we will write we need to select some data, right? So I have a table here which I took the liberty of making before this video. So I have called this table as student. Now in this student I have roll number, name, chemistry marks, math marks, grades and percent, some random values which I have given. Let's say that I want to select the names of the student whose marks are between 0 to 50 in chemistry. So the way I'll do that is I'll write select, what do we want to see? The name. So I'll write select name from student, which is our table name. Select name from student. This is the same syntax as the last video. Everything is same, the syntax is same. Now the condition is all that's going to change. So bas condition change hoga. So select name from student where chemistry marks. So chem is my column, is where chem between a particular range. So I'll write between 0 to 50, 0 and 50 semicolon. Very important thing, स्टार लगा के लिख लो अपने नोट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट. इन SQL between and not between considers start and end values. इसको मन में कैसे तो घुसा के रखो. स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज कंसिडर होते हैं बिटवीन एंड नॉट बिटवीन के लिए. सो लेट्स सी द आउटपुट. लेट्स से आई रन दिस. इसका आउटपुट कैसा आएगा? आपको एग्जाम पेपर में कई बार पूछेंगे, कई बार नहीं पूछेंगे ही, आउटपुट बताइए स्टेटमेंट्स का. व्हेन यू आर गिविंग आउटपुट फॉर दी स्टेटमेंट्स, आपको ये टेबल फॉर्म में लिखना है, राइट? क्योंकि आपका कंप्यूटर भी वैसे एग्जीक्यूट करता है. सो लेट्स सी व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, क्या सिलेक्ट होएगा? नेम सिलेक्ट होएगा. सो सबसे पहले इधर नेम लिख दो, ठीक है. उसके नेक्स्ट लाइन में वेयर केम मार्क्स बिटवीन 0 एंड 50. तो इधर देखो, सबसे पहले ये 30 है,
तो नेम किसका है 30 पे, दैट्स बिटवीन 0 एंड 50, राइट? सो द नेम इज बॉब, सो आई राइट बॉब, ठीक है। नेक्स्ट ये है राहुल, इसका 95 आउट ऑफ द रेंज, डेविड 45 इन द रेंज, सो इधर डेविड, केवल ना मतलब इस कॉलम के जो वैल्यूज है जो उस रेंज फॉर केमिस्ट्री मार्क्स के बीच में उसको लिख दो, बॉब, डेविड। फिर जैक आता है, इसका भी 30 है, जैक। आर्या इसका 100 है, अनीता इसका 19 है, लिख दो। फिर जेकब, नल, ये कंसिडर नहीं होता है इसमें क्योंकि वो 0 से 50 के बीच में ही नहीं है। सो अब आपने ये लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, एक डब्बा बना दो ऐसा, जो कॉलम का हेडिंग है उसको बना दो हेडिंग रो, बाकी सब आपके डेटा है अलग अलग लाइन पे। कंप्यूटर भी आपको ऐसा ही आउटपुट देगा, राइट? आज के वीडियो में मैं ये करूँगा, आगे के वीडियोस में खुद आप अपने साथ साथ लिखते जाइए नोट्स में, जैसे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिटवीन हो गया, बट लेट्स से मैं लिखूंगा वेयर केमिस्ट्री, मैं ऐसा लिख दिया वेयर केम नॉट बिटवीन 0 एंड 50, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सेम इधर सबसे पहले नेम छाप दो। बट अच्छा एक काम करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। नेम के जगह हम लेते हैं ग्रेड, सिलेक्ट ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट वेयर केमिस्ट्री नॉट बिटवीन 0 एंड 50, एंड चलो केमिस्ट्री का नाम भी चेंज कर देते हैं हम, यहां पर हम लिखते हैं वेयर परसेंट, ये जो हमारा परसेंट कॉलम है, वेयर परसेंट नॉट बिटवीन 0 एंड 50। तो इसके लिए सबसे पहले देखो ग्रेड कॉलम, ये ग्रेड है इधर, इसको छापो इधर ग्रेड। फिर परसेंट किसका 0 से 50 के बीच में नहीं है, सबसे पहले देखो 30, 40, 50, ये तीनों नहीं। 60, 70, 80, 90 जो है, 60 पे है हमारे पास जैक, 70 पे है हमारे पास आर्या, 80 पे है हमारे पास अनीता, एंड 90 पे है हमारे पास जेकब। अब जेकब भाई साहब का ग्रेड नल है, तो यहाँ पर नल लिख दो, डब्बा बना दो, कॉलम नेम को अलग से हाईलाइट कर दो, खत्म। ये है आपका आउटपुट एंड ये है उसका क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, राइट एसक्यूएल क्वेरी, इसको क्वेरी बोलते हैं, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू सिलेक्ट द ग्रेड फ्रॉम अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट वेयर द परसेंट इज नॉट बिटवीन 0 एंड 50। ऐसे हम क्वेश्चंस देखेंगे, अभी के लिए ये समझो कैसे होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब सिलेक्ट, मैं 2 एग्जाम्पल दिखा दिया, वेयर बिटवीन एंड नॉट बिटवीन हम यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन आपके वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, दोनों स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज को, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लेट से मेरे पास कोई लिस्ट ऑफ वैल्यूज है जिसमें से मैं ये चूज करना चाहता हूँ। लेट से आई हैव अ लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स फ्रॉम विच आई वांट टू सिलेक्ट वेयर आई वांट टू सिलेक्ट, लेट से question is select the name and grade from student table where roll number is 13579। इसमें से 7 तक ये, तो चलो 1357। तो ये 1357 जो है लिस्ट होता है, ओके। so what I can write it as, I can write is select name comma grade from where, from student table, from student कंडीशन क्या है, where roll number is 1357। so I can write where roll in and ब्रैकेट खोल के मैं इधर 1357 सेमीकोलन। अब याद करो पाइथन में हम कैसे लिखते थे, अगर हम हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 का, एंड हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है यूजर ने, कोई वेरिएबल a इज इक्वल टू समथिंग जो भी दिया हुआ है, आई कैन राइट a इन लिस्ट। तो क्या करता था, चेक करता था a इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या, इधर है क्या है, तो फिर जो भी आप कंडीशन बोलोगे वो उसको एग्जीक्यूट करता था। वैसे ही इधर भी
वेयर रोल इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। तो आओ देखते हैं इधर हमारे पास क्या है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन देखे, कॉलम नेम को छापो, नेम ग्रेड, लाइन बनाओ, हेडिंग अलग करो, ठीक है। नेम एंड ग्रेड हो गया। तो सबसे पहले वहां जाके देखो किस किस का नेम एंड ग्रेड 1357 रोल नंबर से कॉरेस्पॉन्ड होता है। सो रोल नंबर 1 नेम बॉब, इसका ग्रेड है डी। रोल नंबर 3 डेविड, इसका ग्रेड है डी वापस से। फिर रोल नंबर 5 आर्या, इसका ग्रेड है ए। फिर रोल नंबर 7 जेकब, इसका ग्रेड है नल। डब्बा बना दो, खत्म। दिस इज द आउटपुट, राइट। सो हमने अभी देखा है बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। बच्चा ये सब शॉर्ट फॉर्म्स देख लो, B/W बिटवीन। फिर हमने देखा लिस्ट, ये है लिस्ट टाइप्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ बट ये वीडियो को बार बार देख सकते हैं, बहुत सारा टॉपिक है हम कवर करने के लिए। एंड मेरे को पसंद नहीं 40-40 मिनट के वीडियोस बनाने में। जब मैं भी 12th में था, वो वीडियोस मेरे को देख के, इतने लंबे वीडियोस देख के ऐसे दिल पे आता था, अरे बाबा कब देखेंगे। ठीक है, एनीवेज अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास अगर कोई पैटर्न हमको देखना है, राइट, पैटर्न मैं बताता हूं। पैटर्न देखने के लिए हम दो चीज यूज करते हैं। सबसे पहला ये परसेंट सिंबल या फिर ये अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर है बाबा, डैश नहीं, इधर मैं लिख देता हूं अंडरस्कोर। हाँ, ये परसेंट और अंडरस्कोर ये हम यूज करते हैं। परसेंट हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग को मैच करने में। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? यदि मेरे पास एक स्ट्रिंग है एप्पल करके, तो इससे मैंने अगर ऐप निकाल दिया तो ये जो ऐप है ये एप्पल का सबस्ट्रिंग होता है, ठीक है। फिर ये जो अंडरस्कोर है ये कैरेक्टर मैचिंग के लिए होता है, मतलब एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे ए या पी या एल या ई, एक एक कैरेक्टर को मैच करने के लिए। क्या मतलब है मैच करने के लिए? लेट्स से कि मैं चाहता हूं सारे वो नेम्स को निकालना जिसके स्टार्टिंग में जे आता है, जे, लाइक जे ए। सो आई विल राइट परसेंट। बट परसेंट क्या है, इसका मतलब क्या है? इसको ना हम तीन तरीके से इवेल्युएट करते हैं। लेट्स से आई वांट टू फाइंड ऑल स्टार्टिंग विथ, कंटेनिंग एंड एंडिंग विथ जे ए। तो स्टार्टिंग के लिए मैं लिखूंगा जे कोटेशन में जे ए परसेंट। तो इसका मतलब होता है जो भी जे ए से स्टार्ट कर रहा है एंड फिर ये परसेंट, मतलब हाँ जो भी बाकी का आता है उससे हमारा लेना देना नहीं। सो व्हाटएवर स्टार्ट्स विद जे ए। देन कंटेनिंग, मतलब दोनों साइड पे परसेंट लगा के जे ए बीच में लिखो। उसका मतलब है स्टार्टिंग में जो है फर्क नहीं पड़ता, जे ए है फिर जो भी है फर्क नहीं पड़ता। लास्टली एंडिंग में मतलब परसेंट जे ए। सो पैटर्न समझ रहे हो? जे ए फिर परसेंट, मतलब जे ए स्टार्टिंग में है फिर बाकी का। परसेंट जे ए है, मतलब दोनों साइड पे क्या है लेना देना नहीं, बीच में जे ए होना चाहिए। लास्ट में परसेंट जे ए, मतलब पहले जो है फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जे ए होना चाहिए। ओके, अब कैरेक्टर मैचिंग की बात करते हैं। ये कैसे होता है? कैरेक्टर मैचिंग तब इंपॉर्टेंट होता है, लेट्स से कि मैं देखना चाहता हूं कौन से 3 लेटर वर्ड में मिडल लेटर ए है। मिडल लेटर ए है, उसके लिए मैं लिखूंगा कोटेशन डैश ए डैश, या फिर स्टार्टिंग ऑफ अ 3 लेटर वर्ड हैज ए। सो मैं ना इस ऑर्डर में जा रहा हूं। सो आई विल राइट स्टार्टिंग के लिए
ए डैश डैश, मिडल के लिए डैश ए डैश, एंड गेस कर सकते हो लास्ट के लिए डैश डैश ए। तो डिफरेंस क्या है मेन, ये सबस्ट्रिंग मैच करता है, ये कैरेक्टर मैच करता है। परसेंट लगा दिए मतलब कितने भी हो सकते हैं उसके बाद कैरेक्टर्स, पर कैरेक्टर एग्जैक्ट जितने आपने डाले हैं उतने का ही वर्ड होगा वो। चलो एग्जाम्पल करते हैं, एक थोड़ा समझेगा, बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब यूज करने के लिए एक कीवर्ड है कॉल्ड लाइक। अब उसका सिंटैक्स में कैसे यूज करते हैं मैं अभी दिखाता हूं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, लेट से मेरे को इस टेबल में से सारे नाम सिलेक्ट करने हैं जो जे ए से शुरू होते हैं। ओके, सो यहां पर मेरे पास है जैक और जेकब। ओके, सो लेट्स सिलेक्ट ऑल नेम्स विच स्टार्ट विद जे ए। सो इसके लिए मैं लिखूंगा सिलेक्ट, या फिर जस्ट अभी बहुत बार हमने कॉलम सिलेक्ट कर, लेट्स सिलेक्ट एवरीथिंग जिसके जे मतलब सारे डिटेल्स उस आदमी के। सो सिलेक्ट स्टार, याद रखो स्टार सिलेक्ट्स एवरीथिंग, मैंने ये पिछले वीडियो में भी बताया था। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब देखो वेयर नेम लाइक कोटेशन शुरू करो, अब जे ए परसेंट सेमीकोलन, मतलब जो जे ए से शुरू होता है आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले ये सब सारे कॉलम थोपो। सो क्योंकि यहां पर सब सिलेक्टर है, सो रोल नेम केम मैथ ग्रेड परसेंट, जैसा कॉलम नेम है वैसा लिखो, हेडिंग को अलग कर दो। फिर देखो जे एक किससे शुरू हो रहा है, सबसे पहले इधर हमारे पास जैक है, जैक का रोल नंबर 4, नाम लिखो पूरा, ये पूरा जो भी जैक के साथ रिलेटेड डेटा है। सो 4 जैक 30 100 बी 60, ठीक है। नेक्स्ट जे ए किधर है, इधर आए जेकब, तो इधर लिखो रोल नंबर 7 जेकब नल, अरे बाबा लगते हैं जेकब के मैथ मार्क्स है ही नहीं, इधर 0 डाल देते हैं, 0 नल 90, टेबल बना दो, खलास, ऐसे चलता है। लेट से अब मैं चेंज करके इसको ऐसा करना चाहता हूं जिनका नाम जे ए से एंड होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंट जे ए, याद रखो अगर मैं चाहता हूं कि बीच में जिसके नाम के जे ए आता है तो परसेंट जे ए परसेंट लिख दूंगा। ओके चलो ठीक है। अब लेट से मैं थोड़ा सा ज्यादा ही पर्टिकुलर होना चाहता हूं सिलेक्शन के बारे में, लेट से कि मेरे को केवल वो नाम चाहिए जिनमें 3 लेटर्स हैं एंड शुरू होते हैं बी से, सो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट लेट्स से परसेंट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, अब याद करो कैरेक्टर मैचिंग चल रहा है यहाँ पर, एग्जैक्ट 3 कैरेक्टर होने चाहिए, पहला कैरेक्टर होना चाहिए बी। सो आई विल राइट वेयर नेम लाइक कोटेशन खोलो बी डैश डैश सेमीकोलन, तो ये क्या करेगा, इधर आएगा, सबसे पहले बनाओ कौन सा कॉलम चाहिए, परसेंट चाहिए, परसेंट में कौन सा चाहिए, जिसका नाम 3 लेटर है बी से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर केवल बॉब है, सो बॉब का परसेंट दिया हुआ है 30, सेपरेट करो डब्बा बनाओ। ओके ये है इसका आउटपुट। अब थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं इसको, लेट से मैं वो सारे नेम्स चाहता हूं, लेट से सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट जिनके भी नाम में 4 लेटर हैं, कैसा करूंगा वो 4 लेटर है जिसके नाम में, बड़ी सिंपल बात है ये। अब यहां पर बी हटा के 4 डैश लगा दो, क्यों भाई 4 कैरेक्टर्स,
1 2 3 4 4 डैश, कुछ और चेंज मत करो। यहाँ पर हमारे टेबल को बस बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका आउटपुट है, सबसे पहले टेबल का हेडिंग छापो, अलग करो। 4 लेटर किस किस के नाम में है, आओ आओ इधर, जैक के नाम में 4 है, सो जैक। फिर आर्या के नाम में है तो आर्या, फिर और कोई नहीं है तो बस इतना ही, डब्बा बनाओ, खत्म। तो ये था लाइक। तो अभी हमने बात किया है बिटवीन नॉट बिटवीन, लिस्ट एंड लाइक। लाइक में कैसे परसेंट और अंडरस्कोर, बढ़िया। पैटर्न भी हमने सीख लिया कैसे मैच करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये सिलेक्ट करूं जिसके मार्क्स नल है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं वो स्टूडेंट के नाम और उनका परसेंट निकालूं या ग्रेड निकालूं, चलो ग्रेड निकालते हैं, जिनके परसेंट या फिर जिनका केमिस्ट्री मार्क्स नल है। तो उसके लिए कैसा लिखूंगा, सिलेक्ट कौन से कॉलम चाहिए, नेम एंड ग्रेड। सो नेम कॉमा ग्रेड फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, सो फ्रॉम स्टूडेंट। कंडीशन क्या है, वेयर केमिस्ट्री मार्क्स इज नल, वेयर कॉलम नेम क्या है, केम कॉलम में मार्क्स नल है, सो वेयर केम इज नल, सेमीकोलन। तो ये इधर आएगा। सबसे पहले देखो, ब्रेक डाउन करो, कंप्यूटर क्या करेगा। कंप्यूटर सबसे पहले स्टूडेंट के टेबल में आया, फिर आपका कंडीशन किधर दिया हुआ है, केमिस्ट्री के कॉलम में, सो केमिस्ट्री के कॉलम में जाएगा। अब देखेगा नल किधर है, नल 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 नल, इधर मिला उसको नल। अभी इस भाई साहब के लिए वो सबसे पहले नेम लिखेगा, तो छापो इधर नेम। सेकंड कॉलम है हमारा ग्रेड, अलग करो हेडिंग्स को। नेम हो गया जेकब, भाई साहब का ग्रेड भी नल है, चलो बढ़िया, ग्रेड नल, डब्बा बनाओ, खत्म। तो ऐसे हम इस नल को भी यूज करते हैं। तो ये तरीका हम यूज करते हैं चेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल है या नहीं। सो इज नल। अब हमने ये बहुत देखा कि हमने वैल्यूज़ में मतलब इंसर्ट किए वैल्यूज़ को, फिर कैसे कैसे हमने उसको यूज़ किया अलग अलग कंस्ट्रेंट्स निकाल के पर्टिकुलर कॉलम्स में। मानो कि अब मैंने एंट्री करते समय गलती कर दी। जैसे देखो ये भाई साहब जिनका ग्रेड नल है, राइट, सो जेकब का ग्रेड भी नल है, केमिस्ट्री मार्क्स भी नल है, ऑल ऑफ दैट। लेट्स से आई वांट टू चेंज, लेट्स से कि आई वांट टू गिव जेकब को केमिस्ट्री में 100 एंड मैथ ग्रेड को मैं करना चाहता हूँ C। सो हाउ विल आई डू दैट। उसके लिए हम यूज करते हैं एक नए टाइप के फंक्शन को कॉल्ड अपडेट। सो फॉर दैट आई विल राइट अपडेट टेबल नेम सेट column is equal to value comma column is equal to value, so on and so forth, where condition, जो भी कंडीशन है। तो इधर आओ देखते हैं कैसा होता है ये। सो मैं चाहता हूं कि जेकब के केमिस्ट्री मार्क्स को 100 कर दे एंड ग्रेड को C कर दे, राइट। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की, याद करो जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था प्राइमरी की। व्हाट इज अ प्राइमरी की? इट इज अ वैल्यू दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रो। तो यहां पर देखा जाए तो मेरा जो रोल नंबर है वही हो गया मेरा प्राइमरी की। सो आई कैन आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रो जस्ट बेस्ड ऑन द रोल नंबर। सो आई कैन राइट अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट। सो अपडेट स्टूडेंट, क्या करना है, सेट करना है, सेट कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू, कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब
किस कॉलम का वैल्यू को क्या करना है। सो यहाँ पर केमिस्ट्री कॉलम के वैल्यू को 100 करना है, कॉमा ग्रेड को C करना है। अगेन C इज अ स्ट्रिंग, कोटेशन मार्क्स। ग्रेड को C करना है, पर किस चीज के लिए, कौन से स्टूडेंट के लिए, वेयर कंडीशन रोल इज इक्वल टू 7। तो कंप्यूटर आएगा इधर, देखेगा रोल नंबर 7 किधर है। सो रोल नंबर 7 इधर है। 7 के केमिस्ट्री वाले वैल्यू को 100 कर दो एंड ग्रेड को C कर दो। तो ऐसा हम अपडेट करते हैं। बट इफ यू रियली लुक एट इट, हम एक एक वैल्यू को ही करते जा रहे हैं। अभी मैं अगर चाहूँ कि मैं ऐड करूँ सारे वैल्यूज को, लेट्स से आई वांट टू ऐड ऑल द मैथ के मार्क्स, और आई वांट टू एवरेज ऑल द मैथ के मार्क्स, हाउ डज दैट वर्क? For that we have a very important concept called aggregate functions. Aggregate functions. What are aggregate functions? Aggregate functions are functions, ये note करो, aggregate functions are functions which work on groups of rows rather than single rows. Okay, groups of rows rather than single rows. What aggregate functions do we have? हमारे पास है sum, avg और average, max, min and count. So you have 5 aggregate functions. Okay, अब एक्सेप्ट अभी ये सम एंड एवरेज के लिए ना हम एक चीज डिस्कस करते हैं। इनके ब्रैकेट्स में आता है ऑल या फिर डिस्टिंक्ट। उसका मतलब क्या है? वैसे तो अगर आप ऑल लिखोगे भी नहीं, इट्स स्टिल फाइन, द कंप्यूटर विल बाय डिफॉल्ट अज्यूम यू मीन एवरीथिंग। बट इफ यू राइट डिस्टिंक्ट, व्हाट डज इट मीन? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक, जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो व्हेन यू राइट दिस इनसाइड दैट फंक्शन, दैट एग्रीगेट फंक्शन, व्हाट कंप्यूटर अज्यूम्स इज यू मीन टू डू दैट फॉर नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज। अभी हम देखते हैं। ओके, लेट्स सी। तो नोट कर लो 5 हमारे एग्रीगेट वैल्यूज, आई मीन एग्रीगेट फंक्शन, सॉरी। लेट्स से मुझे निकालना है सम ऑफ माय मैथ मार्क्स, राइट? सम ऑफ माय मैथ मार्क्स। सो फॉर दैट आई विल राइट सिलेक्ट सम। अब ब्रैकेट में हम लिखते हैं कॉलम नेम। सो कॉलम इज मैथ कॉलम। सो सिलेक्ट सम मैथ from table name, so from student। समझो इसका सिंटैक्स क्या है। सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, ब्रैकेट में कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो ये क्या करेगा? इधर जाएगा टेबल के अंदर और देखेगा। तो इसका आउटपुट, इफ दे आस्क यू इन द बोर्ड एग्जाम, व्हाट यू विल राइट इज यू विल राइट सम। तो ये जो है आपका कॉलम का जो आप एक्शन कर रहे हो, सम ब्रैकेट में मैथ, लाइन बनाओ, सम ब्रैकेट में मैथ। अब ऐड करो ये सब मैथ के कॉलम वैल्यूज को, राइट? सो हमारे पास है 30, 0, 90, 100, ये हो गया 300। लास्ट में बचा वापस से 0, ऐड किए तो आया इधर 0, इधर आया 12, इधर आया 420 इज द सम ऑफ मैथ का वैल्यू। ओके, तो ये ऐसे चलता है। मान लो अब मैंने आपको डिस्टिंक्ट के बारे में बोला, मान लो अब कि वो इधर आया एंड मैंने लिख दिया इसके ब्रैकेट के अंदर
सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैथ कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट मैथ, आई थिंक कैमरा में थोड़ा सा छोटा है, प्लीज एडजस्ट करें, सॉरी अबाउट दैट, राइट। सो सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट मैथ, तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, वो केवल यूनिक वैल्यूज लेगा। एक्सक्यूज मी। सो मैथ टेबल में 30 यूनिक है, 0 यूनिक है, 90 यूनिक है, 100 यूनिक है, बट अभी वापस इधर आया, यहां पर भी 100 है, नॉट यूनिक, वापस से आया 100, नॉट यूनिक, इधर आया 0, नॉट यूनिक। तो ये 3 वैल्यूज को वो कंसिडर ही नहीं करेगा अपने इस वाले सम में। इट विल ओनली कंसिडर द फर्स्ट यूनिक वैल्यूज दैट इट फाइंड। सो इसका आउटपुट होगा सम डिस्टिंक्ट मैथ, अलग कर दो हेडिंग को, अब ऐड करो 30, 0, 90, 100। सो ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 2, 220। ओके, सो ये केवल जो यूनिक वैल्यूज है उन्हीं को लेता है, फर्स्ट टाइम जो आते हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं उनको कंसिडर नहीं करता। ओके, अब हम देखते हैं अगला एग्रीगेट फंक्शन, वो एवरेज होता है, एवरेज। सो लेट्स से आई से सिलेक्ट average of all in my percent column, all percent from student। ठीक है, अब मैं all लिखूं या मैं all को नहीं लिखूं फर्क नहीं पड़ता, इट इज गोइंग टू कंसिडर एवरीथिंग ओवर हियर, राइट। तो अब क्या होगा, ये 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 डिवाइड बाय 7, मतलब इसका पूरा एवरेज निकाल देगा। इट विल टेक द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दिस। अब इस कॉलम के लिए इवन इफ आई राइट डिस्टिंक्ट, इट्स गोइंग टू बी द सेम। व्हाई? बिकॉज यहां पर देयर आर नो रिपीटिंग वैल्यूज, योर आउटपुट विल बी द सेम। ठीक है, सो एवरेज एंड सम होपफुली आपको समझ गया। लेट्स नाउ टॉक अबाउट मैक्स। मैक्स इज शॉर्ट फॉर्म फॉर मैक्सिमम। So select max from percent, वापस से। So select max from percent, table is student, so select max percent from student। इसका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले ये जो कॉलम का एक्शन कर रहे हो उसको वैसा का वैसा लिख दो, max percent, लाइन से अलग करो, इधर आओ, देखो परसेंट कॉलम में सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहां पर 90 लिख दो, डब्बा बनाओ, खत्म कहानी। लेट्स से मेरे को अब मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए, वो कैसा लिखूंगा मैं, तो कहानी तो सेम ही है। सिलेक्ट मैक्स परसेंट कॉमा min percent from student। इसका आउटपुट कैसे निकालोगे, दोनों कॉलम्स को लिखो, मैक्स परसेंट अलग, min परसेंट, लाइन बनाओ। मैक्सिमम परसेंट 30, 40, 50, 90 है, हमने पिछले बार भी कैलकुलेट किया। मिनिमम परसेंट इधर देखो 30 है, डब्बा बनाओ, खेल खत्म। बढ़िया, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम ये सब कर दिया। बचा क्या है अब, बचा क्या है, बचा है काउंट। काउंट क्या करता होगा, काउंट ही करता होगा, जैसा नाम से गेस कर सकते हैं। कैसे, आई मीन कैसे नहीं, स्पेशली लास्ट तक मैंने क्यों रखा, काउंट में एक स्पेशलिटी है। काउंट इस तरीके से भी कर सकता हूं, काउंट स्टार लगा के भी मैं कर सकता हूं। डिफरेंस क्या है दोनों का, चलो देखते हैं। काउंट विदाउट द एस्ट्रिक्स जो होता है, वो सारे
सारे रोज को काउंट करता है, काउंट्स ऑल एक्सेप्ट नल। मतलब नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा वो। काउंट स्टार जो है, काउंट ऑल रोज। काउंट स्टार को फर्क नहीं पड़ता क्या है, काउंट स्टार सारे रोज को काउंट कर लेता है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं उसको काउंट करके आपको आउटपुट देता है। तो चलो एक प्रोग्राम देखते हैं। लेट्स से कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ रोज एक्सेप्ट नल। ठीक है, तो आई मीन लेट्स सी काउंट द नंबर ऑफ मार्क्स जो है एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री मार्क्स जो नल है। चलो केमिस्ट्री में तो नल नहीं है, खैर लेट्स चेंज सम वैल्यू इन केमिस्ट्री। सो वापस से हम जेकब को केमिस्ट्री में नल दे देते हैं। तो अब हमने जेकब को केमिस्ट्री में नल दे दिया। सो अभी मैंने इधर स्टेटमेंट लिख दिया ऑलरेडी, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमको क्या काउंट करना है, केमिस्ट्री काउंट करना है। तो सिलेक्ट केम फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको लिख दो कॉलम नेम काउंट ब्रैकेट्स में केम, अलग कर दो। अब केमिस्ट्री में आके देखो कितने नॉन नल वैल्यूज है, जिसका वैल्यू नल नहीं है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका वैल्यू होगा 6, डब्बा बना दो। यही चीज यदि मैं बोल दूं कि सिलेक्ट मतलब बस काउंट करो कितने रोज है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टार, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट काउंट स्टार। तो ये सारे रोज काउंट कर लेगा, नल हो या नल नहीं हो। तो इधर है 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर आए हम, हमारे इस आउटपुट को भी फिर चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा काउंट स्टार और ये हो जाएगा 7। तो इससे क्या समझने को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एग्रीगेट फंक्शंस जो है नॉर्मली नल को कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। नॉर्मली दे डू नॉट कंसिडर नल, काउंट स्टार ही नल को कंसिडर करता है। सो दिस वॉज एग्रीगेट फंक्शंस एज वेल। बहुत सारा आज ट्रिकी कॉन्सेप्ट था, बट होपफुली आपने फॉलो किया, एंड नहीं तो फिर एक बार वापस से वीडियो को देखो। एंड यस